Hello students, how are you all? I'm sure you all are doing perfect and enjoying your studies too. So children, let's begin with our next chapter which is nutrition in animals. Previous chapter में हमने जाना था nutrition in plants कि plants nutrition कैसे कैसे और कहाँ से लेते हैं. इस chapter में हम animals के nutrition के बारे में पढ़ेंगे कि उनको nutrition कहाँ से मिलता है. In the previous chapter, we studied that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis, but animals cannot. They cannot prepare their own food and depend directly or indirectly on the plants. This is known as heterotrophic mode of nutrition. The food that animals eat consists of complex substances which need to be broken down into simpler substances that can be absorbed by their body. तो ये तो हमें पता है कि प्लांट जो है अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, लेकिन एनिमल्स में ये प्रोसेस नहीं होता. एनिमल्स को प्लांट्स पर डिपेंड होता है, इसलिए उन्हें ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है. फूड जो कि एनिमल्स खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को कंसिस्ट करते हैं जिनको आगे सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन किया जाता है और फिर इनकी बॉडी के द्वारा उसे अब्जॉर्ब किया जाता है. On the basis of the type of food eaten, animals can be divided as herbivores, carnivores, omnivores, scavengers and parasites. तो इनको डिटेल में जान लेते हैं. Herbivores कौन से होते हैं? Herbivores animals that eat only plants that are called herbivores. For example, cow, buffalo, elephant, deer, etc. तो ये तो हमें पता ही है. जो animals plants खाते हैं उन्हें herbivores कहा जाता है. Carnivores animals that eat other animals are called carnivores. For example, lion, tiger, fox, jackal, etc. Omnivores animals that eat both plants and other animals are called omnivores. For example, human, cat, rat, crow, etc. Scavengers animals that eat dead animals are called scavengers. For example, vulture, wolf, hyena, etc. Parasites, some microorganisms and insects live on or inside other organisms are called a host. These microorganisms derive food from their host and cause disease or infections to the host. Such organisms are called parasites. For example, virus, lees, mosquito, tapeworm, etc. तो कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को मार के खाते हैं, मतलब मीट खाते हैं, तो वो कार्निवोर्स कहलाते हैं. ऑमनिवोर्स जो होते हैं ये दोनों खाते हैं, ये प्लांट्स भी खाते हैं और ये एनिमल्स भी खाते हैं, इसमें ह्यूमन बींग्स भी आ जाते हैं. स्कैवेंजर्स, अब जो कार्निवोर्स के द्वारा जो डेड एनिमल्स को छोड़ दिया जाता है उनको कम्प्लीटली खाया जाता है स्कैवेंजर्स के द्वारा, क्योंकि ये डेड एनिमल्स को ही खाते हैं. पैरासाइट्स कौन से होते हैं? ये छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं जो कि दूसरे होस्ट की बॉडी से या दूसरे जो ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी से ये चिपक जाते हैं, फिर उनका ये ब्लड वगैरह सक करते हैं और उनको एक तरह का इन्फेक्शन ये देते हैं. Different steps in animal nutrition. The food eaten by animals undergoes 5 steps. Ingestion. It is the process by which food is taken inside the body of an organism. Digestion. The process by breaking down of the complex food into simple soluble form with the help of various juices produced in the body is called digestion. Absorption. It is the process by which digested nutrients are absorbed into the blood vessels and transported to the body tissue. Assimilation, the process in which the food nutrients absorbed by the body are utilized for growth and development of the body parts, is called assimilation. Through this process, the energy is used for doing work and for the repair of damaged body parts. Digestion, it is the process by which undigested food materials are removed from the body. तो यहाँ पे हम जान लेते हैं कि किन स्टेप्स के द्वारा जो फूड है वो एनिमल्स के द्वारा खाया जाता है. सबसे पहला है इंजेक्शन. ये एक प्रोसेस होता है. एज अ प्रोसेस में जो फूड जो होता है वो बॉडी में जाता है, मतलब उसको अंदर लिया जाता है. डाइजेशन मतलब इसमें क्या किया जाता है, जैसे हमारी बॉडी में खाने को डाइजेस्ट किया जाता है वैसे ही एनिमल्स की बॉडी में जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है उसको तोड़ा जाता है और उसको सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट किया जाता है. एब्जॉर्प्शन, अब जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको उस खाने में से एब्जॉर्ब किया जाता है. एसिमिलेशन, ये एक प्रोसेस होता है जिसमें फूड न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया जाता है बॉडी के द्वारा और उसको ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए लगाया जाता है. दूसरा आखिरी है इजेशन. ये एक प्रोसेस होता है जिसमें जो अनडाइजेस्टेड खाना होता है उसको बॉडी से बाहर रिमूव किया जाता है. इजेशन इन डिफरेंट एनिमल्स. Different animals have different ways of ingesting food.
दे यूज स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स टू टेक इन फूड इनसाइड द बॉडी। तो इंजेक्शन जो होता है, मतलब जो खाना अंदर लेने की जो प्रक्रिया होती है वो एनिमल्स में अलग अलग होती है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक पैरामीशियम हैज हेयर लाइक सीलिया टू टेक फूड पार्टिकल्स एंड वाटर इनटू बॉडी। अब जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे पैरामीशियम, तो इसमें हेयर लाइक सीलिया होते हैं, मतलब इनकी बॉडी में हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो फूड पार्टिकल्स को और वाटर को अंदर लेता है। The hydra uses its tentacles to catch and put the prey into its body cavity. हाइड्रा जो होता है उसकी बॉडी में टेंटिकल्स होते हैं जो कि अपने बॉडी को या अपने खाने को ये क्या करते हैं, उसको पकड़ते हैं और फिर उसकी कैविटी को अपने बॉडी की कैविटी के साथ मिलाते हैं। The mouth of the bird is modified into beak which helps it to pick, catch, tear or crack the food. अब आपने birds में भी देखा होगा इनकी चोंच होती है, इनके दांत नहीं होते, तो ये अपनी चोंच से उस खाने को तोड़ती हैं फिर उसको swallow करती है। Amoeba uses its false foot साइडोपोडियम टू engulf the food particles. तो अमीबा जो है ये अपने false foot को हेल्प करता है या उसको यूज़ करता है फूड पार्टिकल्स को engulf करने में। A frog uses its sticky tongue to catch and ingest its food. अब आपने फ्रॉग को देखा होगा, वो अपनी स्टिकी टंग को क्या करता है, उससे अपने प्रे को कैच करता है फिर उसको अंदर लेता है। A butterfly uses its feeding tubes called proboscis to suck nectar from flowers. अब आपने अगर बटरफ्लाई को देखा होगा ध्यान से, तो उसके मुंह में क्या होता है, एक ट्यूब सी होती है, उस ट्यूब को वो कहाँ डालती है, फ्लावर्स के अंदर डालती है, फिर उसका नेक्टर वो सक करती है। Mosquito uses its feeding tube to suck the blood of animals. A snake, like pythons and crocodiles, swallows its food whole. अब स्नेक और पाइथन जो होते हैं और क्रोकोडाइल्स जो होते हैं अपना पूरा का पूरा खाना वैसे ही सॉलो कर लेते हैं, उसको च्यू नहीं करते क्योंकि स्नेक्स के दांत नहीं होते। ह्यूमन्स यूज देयर हैंड्स टू पुट फूड इन द माउथ। और हम सबका तो आपको पता ही है, हम अपना खाना जो है हाथ से अपने मुंह में डालते हैं। Some animals bite and chew their food. This is the most common method of ingestion in big animals like human, dog, cat, lion, elephant, etc. Now fact bites. A starfish feeds on sea animals covered by hard shells of calcium carbonate. After opening the shell, it pops out its stomach through its mouth to eat the soft animal inside the shell. Then stomach goes back into the body and food is easily digested. तो स्टार फिश आपने देखी होगी, वो सी एनिमल्स को खाती है कवर्ड बाय हार्ड शेल्स। पहले क्या करती है, उनके शेल को ओपनिंग होने का वेट करती है, फिर उनको पॉप आउट करके उसके स्टमक के थ्रू उनके अंदर पहुंच जाती है। Activity 1. Observe the food and mode of feeding in different animals in your surrounding and complete the table given below. अब आपको अपने आसपास के जो एनिमल्स हैं उनको आपको ऑब्जर्व करना है कि वो कैसे खाना खाते हैं। जैसे यहाँ पे नेम्स ऑफ एनिमल्स दिया गया है, एनिमल्स फूड, मोड ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड, तो किस तरीके से ये जो एनिमल्स हैं ये किस तरह का खाना खाते हैं वो आपको इस टेबल में फिल करना है। Digestion in amoeba. Amoeba is a microscopic single-celled organism found in pond water. It is irregular in shape. It gives out one or more finger-like projections called pseudopodia, which helps in movement and capturing food. The mode of nutrition in amoeba is holozoic. तो जो mode of न्यूट्रिशन होता है अमीबा में उसको होलोजोइक कहा जाता है, ठीक है, और ये ज़्यादातर पॉन्ड वाटर में पाए जाते हैं। इनके मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको साइडोपोडिया कहते हैं, जो इनको फूड को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं। Amoeba does not have a mouth or digestive system. It feeds on other microscopic plants and animals that float in water. When it sinks food, it gives out cytopodia which surround the food particle and ultimately takes the food particle inside the body. The food particle in amoeba forms a temporary stomach called food vacuole. The digestive juices are secreted into the food vacuoles to break down food into simpler substances. The digested food is absorbed into the cytoplasm by the process of diffusion and then assimilated. Food absorbed is used to obtain energy for maintaining life processes. The amoeba grows in size. The undigested food is thrown out with the help of temporary excretory vacuole. तो अमीबा जो होता है इसका माउथ नहीं होता, ना ही इसका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, तो अब ये खाना कैसे खाता है, तो ये क्या करता है, ये पानी में फ्लोट करता है, तो ये जैसे फूड को सेंस करता है तो ये अपना साइडोफीडिया जो है वो उसके सराउंडिंग में
फैला लेता है और उसको क्या कर लेता है, एक तरह से कवर कर लेता है, जैसे यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रहा है। फिर वो क्या बन जाता है, उसका स्टमक बन जाता है, जो भी उसका फूड होता है उसका स्टमक ये बन जाता है, एक टेम्परेरी स्टमक बन जाता है जिसको फूड वैक्यूल कहा जाता है। इसमें से डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट किया जाता है इनटू फूड वैक्यूल्स और उनको सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक किया जाता है। नाउ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। न्यूट्रिशन इन humans is called holozoic. We take in food through our mouth. From the mouth, food passes through a number of organs in the body. All these organs together form a alimentary canal or digestive tract. The alimentary canal is about 9 to 10 meter long and consists of the following organs: mouth and buccal cavity, esophagus, food pipe, stomach, small intestine, large intestine, rectum and anus. तो न्यूट्रिशन जो होता है ह्यूमन में वो भी होलोजोइक ही कहलाता है। हम फूड को अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, मतलब डिफरेंट जो ऑर्गन्स होते हैं उनके द्वारा उसे क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। सबसे पहले खाना जो है हमारे मुंह के थ्रू हमारे कहाँ जाता है, पेट में जाता है, वहाँ पे ये डाइजेस्ट होता है। तो ये सारे ऑर्गन्स जो हैं ये हमें लगते हैं या यूज़ किए जाते हैं हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। There are some glands in our body which produce juices that help in digestion of food. These glands do not form part of the alimentary canal but are parts of our digestive system. These glands are salivary gland, liver, gallbladder and pancreas. The alimentary canal along with the digestive glands is called the digestive system. अब हमारी बॉडी में अलग अलग ग्लैंड्स होते हैं जिनसे जूस निकलता है। ये जो जूस होता है ये हमारे खाने को क्या करता है, तोड़ता है, उसको सिंपलर फॉर्म में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। तो इसमें जैसे आपके सेलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, लीवर होता है, गॉल ब्लैडर और पेनक्रियाज होते हैं। तो ये एक एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू हमारे फूड को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। माउथ एंड द ब्यूकल कैविटी, वी इंजेस्ट फूड थ्रू आवर माउथ. Digestion begins in the mouth when we chew the food. Buccal cavity is in inner portion of the mouth and contain the tongue, teeth and salivary gland. तो हमारे माउथ से हमारा जो डाइजेशन होता है फूड का वो स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हम अपने मुंह में जैसे ही खाना डालते हैं उसको च्यू करना शुरू करते हैं। तो हमारे जो सेलिवरी ग्लैंड्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, टीथ वगैरह एक्टिव हो जाते हैं, जो उस खाने को क्या करते हैं, सिंपलर फॉर्म में उसको तोड़ करके फूड पाइप के थ्रू हमारे पेट में भेजते हैं। Teeth help in the breakdown of food into smaller pieces. They are of different kinds and are located in both the upper and the lower jaw. They have roots in gums in separate socket. तो टीथ जो है ये फूड को सिंपलर फॉर्म में या सिंपलर पीसीज में, स्मॉलर पीसीज में तोड़ने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। क्योंकि आप जो निवाला खाते हो वो आप एज इट इज सॉलो नहीं करते, आप उसको सबसे पहले क्या करते हो, च्यू करते हो। तो च्यू करने में आपके सबसे पहले दांत जो है वो हेल्प करते हैं। अब दांत जो है ये आपके लोअर जॉ और अपर जॉ में अलग अलग क्या होते हैं, अलग अलग जगह पे ये प्लेस होते हैं, जिनका अलग अलग रोल होता है हमारे खाने को च्यू करने का। Each set of teeth is divided into two parts, upper jaw and lower jaw. The milk teeth are 20 in number, 10 each in both upper and lower jaws. The permanent teeth are 32 in number, 16 each in both upper and lower jaws. तो आप सबको पता ही है कि हमारे मुंह में, एक एडल्ट इंसान के मुंह में 32 दांत होते हैं, लेकिन जब वो छोटा होता है, जब वो बच्चा होता है, जो मतलब जो मिल्क टीथ कहते हैं, वो 20 इन नंबर्स होते हैं। लेकिन हमारे परमानेंट टीथ कौन से कहलाते हैं, वो जो 32 होते हैं वो कहलाते हैं, जिसमें 16 का गैप होता है या 16 होते हैं दोनों सेट ऑफ जॉज में। Each jaw has same teeth on its left and right portions. For making it easy to understand, we can study any one side of the jaw. The 8 teeth on each side of the jaw are as under: incisors, canines, premolars, molars. On the basis of their structure and function, teeth are of 4 types. They are discussed in the following table. तो हमारे teeth भी जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं: incisors, कैनाइन्स, प्रीमोलार एंड मोलार्स। ठीक है, अब इनके भी अलग अलग फंक्शंस होते हैं, अलग अलग काम होते हैं। यहाँ पे हमें टेबल में बताया गया है। टाइप्स ऑफ टीथ, टेम्परेरी टीथ, परमानेंट टीथ, स्ट्रक्चर, फंक्शन। इंसाइसर 8 होते हैं, ठीक है, टेम्परेरी टीथ भी 8 होते हैं, परमानेंट टीथ भी ये 1 ही होते हैं। स्ट्रक्चर फ्लैट सीजल शेप्ड होते हैं एंड कट एंड बाइट सॉलिड फूड होते हैं। मतलब इनका फंक्शन क्या होता है, इन फूड को, सॉलिड फूड को कट एंड बाइट करने का होता है। कैनाइन्स जो होते हैं ये टेम्परेरी टीथ में भी 4 ही होते हैं नंबर्स में, और परमानेंट में भी ये 4 होते हैं। ये पॉइंटेड एंड शार्प होते हैं और ये होल्ड, कट एंड टीयर फूड करने में हेल्प करते हैं। प्रीमोलार्स जो होते हैं ये टेम्परेरी टीथ में 0 होते हैं, मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें ये होते ही नहीं हैं। परमानेंट टीथ में ये 8 होते हैं।
इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, फ्लैट स्ट्रक्चर्स होता है विद ग्रूव्स एंड रिजेस, और ये फूड को क्रश एंड ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं। मोलार्स जो होते हैं ये टेम्परेरी टीथ में 8 होते हैं और परमानेंट में भी ये 8 होते हैं। इनका स्ट्रक्चर जो होता है फ्लैट सरफेस होता है और ये फूड को ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं। तो टोटल आपको पता चल ही गया होगा, टेम्परेरी टीथ 20 होते हैं एंड परमानेंट टीथ 32 होते हैं। Each tooth is fitted in a separate socket called gums and covered with a special white colored substance called enamel. Enamel is the strongest part of the human body. The different type of teeth breaks up the food into smaller parts so that they can be easily digested. There are 16 teeth in each jaw, making a total of 32 teeth in the mouth cavity. However, the last set of 4 molars develop after the age of 18. These are called wisdom teeth. अब कुछ teeth जो है वो हमारी 18 की जो एज हो जाती है उसके बाद आना शुरू होते हैं, उस एज में आना शुरू होते हैं, जिन्हें हम विजडम टीथ भी कहते हैं। उससे पहले हम जो हमारे इंसाइसर्स होते हैं, कैनाइन्स होते हैं, प्री मोलार्स, मोलार्स होते हैं, उनकी हेल्प से हम अपना खाना क्या करते हैं, च्यू करते हैं। फैक्ट बाइट्स, ह्यूमन हैव 4 टाइप्स ऑफ टीथ, इंसाइसर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलार्स एंड मोलार्स। काउ has 3 types of teeth, incisor, premolars and molars. They lack canines. अब हमारे पास 4 set of teeth होते हैं, जो काउज होते हैं उनमें canines नहीं होते, बाकी सब सेम होते हैं। Now activity 2, stand in front of a mirror and open your mouth and count your teeth in both the jaws with the help of your finger. You can also take the help of your guardian. Observe your teeth and complete the following table. Teeth you use for. Number of teeth total. लोअर जॉ, अपर जॉ, टीयरिंग, कटिंग एंड बाइटिंग, चूइंग एंड ग्राइंडिंग। तो आपको क्या करना है, अपने आपको मिरर के आगे खड़ा करना है, अपने टीथ आपको काउंट करने हैं। ठीक है, आप ये खुद भी कर सकते हो या आप किसी गार्जियन की हेल्प भी ले सकते हो। फिर आपको यहाँ पे लिखना है कि नंबर ऑफ टीथ कितने हैं, आपके लोअर जॉ में कितने हैं और अपर जॉ में कितने हैं, मतलब फिर आप उसका टोटल लिखोगे। फिर कौन कौन से टीथ आप टीयरिंग में हेल्प करते हैं, आपकी कौन कौन से कटिंग एंड बाइटिंग में हेल्प करते हैं, कौन कौन से चूइंग एंड ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं, तो ये सब आपको लिखना है। नाउ डेंटल केयर। Generally, harmless bacteria are present in our mouth, but when we eat, small food particles get stuck in between the teeth, due to which harmful bacteria begin to grow and stick to our mouth to form plaque. They act on the sugars present in the food particles and produce acid. These acids act on the teeth and start damaging them and lead to the formation of cavities. The decay of the outer surface of the tooth as a result of bacterial action is called tooth decay or dental caries. तो हमें क्यों कहा जाता है ब्रश करने को, क्योंकि हमें हमारे दांतों की क्या करनी चाहिए, केयर करनी चाहिए। अगर हम केयर नहीं करेंगे तो हमारे दांतों में क्या होता है, जो भी हमने खाना खाया होता है, स्पेशली जो शुगर हमने खाया होता है, चॉकलेट्स हमने खाई होती है या टॉफ़ीज़ वगैरह हमने खाई होती है, तो हमारे दांतों में थोड़ा बहुत उसका सब्सटेंस रह जाता है जिसमें जर्म्स वगैरह लग जाते हैं और जो हमारे दांतों को सड़ाना शुरू कर देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि दांतों की केयर करनी चाहिए, डेली उनको ब्रश करना चाहिए। In order to maintain oral hygiene and to prevent a bad breath and tooth decay, we should follow some good hygiene practices. तो हमें कुछ good hygiene practices को follow करना चाहिए अपने दांतों को स्वस्थ रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए। Brushing your teeth with a good toothpaste and brush or a neem or babool datun twice a day, spending at least 2 minutes each time. Cutting down on sugary and starchy foods and drinks, particularly between meals or within an hour of going to bed. Do not inserting pen, pencil, etc. in mouth or bite nails. We should eat raw vegetables like carrot, radish and fresh fruits to cleanse the teeth. तो हमें अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए in order to make them healthy. ठीक है, कोशिश करो कि आपको अगर नीम की या आपको बबूल की दातुन मिल जाए तो बहुत अच्छा है। ठीक है, उससे भी आप अपने दांतों को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। अपने जो आपका फूड है उसमें से आपको शुगरी और स्टार्ची फूड को कट ऑफ कर देना चाहिए। जो ड्रिंक्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह हम पीते हैं उसको भी आपको कट ऑफ कर देना चाहिए। अपने मुंह के अंदर आपको पेन, पेंसिल, कोई भी शार्प चीज़ नहीं डालनी चाहिए, ना ही अपने नेल्स बाइट करने चाहिए। और हेल्दी वेजिटेबल्स खानी चाहिए, जैसे आप कैरेट खा सकते हो, रेडिश खा सकते हो, फ्रेश फ्रूट्स भी आप खा सकते हो। Now activity 3, collect data and tabulate it from at least 15 children, your friends, neighbors and classmates to know more about milk teeth. Find the average age at which children lose their milk
टीथ। तो आपको एक टेबल यहाँ पे कंप्लीट करनी है। आपको 25 चिल्ड्रंस लेने हैं एटलीस्ट, मतलब आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, नेबर्स हो सकते हैं, आपके क्लासमेट्स हो सकते हैं। इनसे आपको इनके मिल्क टीथ के बारे में नॉलेज लेनी है कि कौन सी एज में उनके मिल्क टीथ जो थे वो गिरे थे और कितने थे नंबर्स में, ये सब आप पूछ सकते हैं। Fact bites, when we chew chapati or bread, we feel sweet taste in mouth. It is because starch in food is broken down into simpler form, glucose by saliva, giving a sweet taste. जब भी आप ब्रेड या आप रोटी चबा रहे होते हो तो ज़्यादा देर तक जब आप चबाते हो तो आपको एक स्वीट टेस्ट आता है। वो इसलिए आता है क्योंकि उस फूड में स्टार्च होता है। Fact bites, we can produce about 1 to 7 liters of saliva every day. तो जो हमारे मुंह में थूक होता है, जो सलाइवा होता है, उसके बारे में बताया गया है कि हम कम से कम 1 से 7 लीटर जो है सलाइवा एवरी डे प्रोड्यूस करते हैं। सलाइवा एंड salivary gland. Our mouth has 3 pairs of salivary glands which secrete saliva. Saliva is a transparent watery liquid which softens and moistens the food so that it can be swallowed easily. It helps in digesting the starch to sugars. That is why if we chew a piece of bread or some boiled rice for a long time, it start tasting sweet. तो सलाइवा जो होता है ये हमारे मुंह के अंदर ही होता है। और कहाँ से निकलता है? ये सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है। सलाइवा जो होता है ट्रांसपेरेंट लिक्विड सब्सटेंस होता है जो हमारे मुंह के अंदर ही रहता है, और जब भी हम कोई खाना च्यू करते हैं तो उसको ये सॉफ्टन करने में हेल्प करता है और उसको हमें निगलने में भी हेल्प करता है। Now tongue. The tongue is a fleshy muscular organ inside the buccal cavity, attached at the back and free at the front. It can be moved in all direction. It perform the following functions. तो टंग जो होती है ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डाइजेशन में। आपको पता ही है जो टंग होती है ये हमारे बैक्स में बैक्यूला से चिपकी हुई होती है और आगे ये फ्री होती है, मतलब हम जिससे बात कर पाते हैं, खाना खा पाते हैं। It helps in mixing the chewed fixed food with saliva. The process of biting, chewing and mixing the food with saliva is called mastication. It helps in swallowing the chewed food. तो हमारी जो टंग होती है ये फूड को चू करने में हेल्प करती है, ठीक है, और उसको सॉलो करने में भी हेल्प करती है। इट हेल्प्स अस टू सेंस टेस्ट विद द हेल्प ऑफ टेस्ट बर्ड्स। हमारे टंग में आप सबको पता ही होगा टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो खाने को टेस्ट करने में हेल्प करते हैं। अब खाना नमकीन है, खट्टा है, मीठा है, ये कैसे पता चलता है? आप उसको देख के तो नहीं पता लगा सकते। तो वो खाना हम जब हमारे मुंह में डालते हैं तो हमारी जो टंग होती है वो बताती है, क्योंकि उसमें हमारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं। इट हेल्प अस टू टॉक। टंग जो है ये हमें बोलने में भी हेल्प करती है। Through the years, scientists have believed that the sensory locations of different tastes on our tongue are located at different parts of the tongue. Due to this, our tongue becomes rough. Recent findings show that the sensation of different tongue, i.e. salty, sweet, sour or bitter, is diverse not only within a single taste bud but also throughout the surface of the tongue. अब हमारे टंग में अलग अलग सरफेस होते हैं, मतलब इसमें अलग अलग जगह पे खाने को जब छुआ जाता है, उसको जब हम टेस्ट करते हैं तो उसके फील जो होती है, उसकी सेंसेशन होती है, उससे हमें पता चलता है कि खाना कैसा है। एक्टिविटी 4 ऑब्जेक्टिव टू डेमोन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ सलाइवा ऑन फूड। Materials required: test tubes, boiled rice, water, dropper and iodine solution. Procedure: take 2 test tubes and label them as A and B. Put some boiled rice in test tube A and put boiled rice which has been chewed properly for 1 minute in test tube B. Now add 5 to 7 ml of water and 4 to 5 drops of iodine solution in each test tube. Observation: since blue-black color develops in test tube A but not in test tube B, the boiled rice in test tube A contains starch, whereas the chewed rice in the test tube B does not contain starch because it was broken down, digested into sugar by the action of saliva. Inference: it shows the action of saliva on food. एक एक्टिविटी आपको करनी है, आपको पता लगाना है कि फूड में सलाइवा होता है या उसका इफेक्ट होता है। इसके लिए आपको ये सब चीज़ें चाहिए होगी, टेस्ट ट्यूब, बॉइल्ड राइस एक्सेट्रा। अब आपको प्रोसीजर जो है स्टार्ट करना है। आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेने हैं, एक को आपको लेबल करना है ए से और दूसरे को करना है बी से। एक में मतलब जो आपका जार है या आपका टेस्ट ट्यूब ए है उसमें आप बॉइल्ड राइस डालेंगे, ठीक है, और दूसरे वाले में आप च्यूड मतलब चबाए हुए जो आपके मुंह से चबाए हुए राइस है उनको आपको डालना है। फिर आपको 5 to 7 ml ऑफ वाटर ऐड करना है और 4 to 5 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन ऐड करना है हर एक टेस्ट ट्यूब में।
फिर आप देखेंगे कि जो ब्लू ब्लैक कलर है वो टेस्ट ट्यूब ए में डेवलप होगा, मतलब उसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा, जबकि टेस्ट ट्यूब बी में नहीं होगा। तो इससे पता चलता है कि जो बॉइल्ड राइस जो आपने च्यू नहीं किए थे उसमें क्या था, स्टार्च था, और जो बी थे उसमें क्या था, स्टार्च नहीं था, क्योंकि वो आपने अच्छे से क्या कर लिए थे, च्यू कर लिए थे। Esophagus, food pipe. The masticated food is then swallowed and transferred to the food pipe or esophagus. It runs along the food pipe and connects your mouth to the stomach. The constant relaxation and contraction of the esophagus wall pushes the food down. This is known as peristaltic movement. This movement takes place throughout the alimentary canal. No digestion takes place here. The esophagus is about 30 centimeter long and is made up of muscles. तो हमारा जो फूड पाइप है, जो esophagus है, वो 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, वो मसल्स का बना हुआ होता है। ठीक है, हालांकि इसमें कोई डाइजेशन टेक प्लेस नहीं होता, मतलब डाइजेशन का इसमें कोई रोल नहीं होता, लेकिन फिर भी ये किस चीज़ में हेल्प करता है, ये हमारे खाने को हमारे मुंह से हमारे स्टमक तक पहुंचाता है। Stomach. The stomach is a J-shaped muscular sac-like organ. It is the widest part of the alimentary canal and is located on the left side of the upper abdomen. It receives food from the esophagus at other end opens into the small intestine. The inner lining of the stomach secretes mucus, hydrochloric acid and pepsin, digestive juices. तो स्टमक जो है ये जे शेप मस्कुलर है हमारी बॉडी का, और ये सैक लाइक ऑर्गन होता है। ठीक है, मतलब एक छोटा सा बोरी की तरह ये स्ट्रक्चर होता है। ये हमारे फूड पाइप से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। उसका दूसरा पार्ट जो है, दूसरा जो इसका एक्सटर्नल जो एरिया है वो हमारे इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ होता है। इनर लाइनिंग जो होती है स्टमक की, वो म्यूकस सिक्रीट करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट करती है, ताकि हमारे खाने को और अच्छे से डाइजेस्ट किया जा सके। अब म्यूकस क्या होता है? द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड एंड एंजाइम्स। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस एसिड किल्स बैक्टीरिया विच एंटर अलॉन्ग विद द फूड। इट मेक्स द फूड एसिडिक फॉर द डाइजेस्टिव जूस टू एक्ट ऑन इट। तो म्यूकस जो होता है ये हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड एंड एंजाइम्स। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है ये बैक्टीरिया को किल करता है जो हमारे खाने के साथ हमारे स्टमक में एंटर करता है। Digestive juices. Pepsin digestive juice helps to break down the protein into simpler substance. In the stomach, food is thoroughly mixed with gastric juice secreted by the gastric glands present in the stomach. The semi-digested food called chyme goes into the small intestine for further digestion. तो डाइजेस्टिव जूस क्या होते हैं? जो आपका पेप्सिन है, डाइजेस्टिव जूस, ये आपके प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। हमारे स्टमक में जो फूड जो होता है ये मिक्स होता है गैस्ट्रिक जूस के साथ, और ये सिक्रीट किया जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के द्वारा, जो कि हमारे स्टमक में ही प्रेजेंट होता है। फैक्ट बाइट्स, गैस्ट्रिक अल्सर इज ऑल्सो नोन एज पेप्टिक अल्सर. It is a break in the lining of the stomach, first part of the small intestine or the lower esophagus. Ulcers usually result in pain in stomach, belching, vomiting, वेट लॉस और पुअर एपेटाइट। तो गैस्ट्रिक अल्सर जो होता है, जिसे पेप्टिक अल्सर भी कहा जाता है, ये हमारी स्टमक की जो लाइनिंग होती है उसे क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है, और हमारे स्टमक में थोड़ा थोड़ा जो पेन होता है वो होना शुरू हो जाता है। Small intestine. The small intestine is the longest part of the digestive system. It is a coiled tube and its average length is around 7.5 meter. It consists of three parts, namely duodenum, jejunum, and ileum. The major part of food takes a place in the small intestine only. It secretes juices and also receives a secretion of the liver and pancreas. तो small intestine जो है ये longest part माना जाता है digestive system का। ये coiled tube होती है, मतलब ये लंबी सी ट्यूब होती है जो coil हुई, मतलब मुड़ी हुई होती है हमारे पेट के अंदर, और इसकी एवरेज लेंथ यहाँ पे आपको दी गई है। इसमें आपके 3 पार्ट होते हैं। जो मेजर पार्ट होता है फूड का वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, जहाँ पे इसको सिक्रीट किया जाता है जूसेस के साथ। Next is liver. It is the largest organ of the body. It is reddish brown in color and is located in the upper part of the abdomen on the right side. It is also a gland because it secretes a bile juice. The yellow colored bile juice is stored in a bag like organ called gallbladder.
The gallbladder slowly passes the bile juice to small intestine which is used for digestion of fats present in the food. तो लीवर जो है ये लार्जेस्ट ऑर्गन माना जाता है हमारी बॉडी का, ठीक है। ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है और ये हमारे एब्डोमेन के अपर पार्ट पे लोकेटेड होता है राइट साइड में। ये भी एक तरह का ग्लैंड होता है क्योंकि ये क्या करता है, सिक्रीट्स करता है बाइल जूस को, और जो येलो कलर्ड बाइल जूस होता है ये स्टोर किया जाता है बैग लाइक ऑर्गन जिसे ही हम गॉल ब्लैडर कहते हैं। गॉल ब्लैडर जो होता है ये इस बाइल को सीक्रेटली क्या करता है, पास करता है टू स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसकी वजह से आगे के जो फैट वगैरह होते हैं उनको डाइजेस्ट किया जाता है। फैक्ट बाइट्स द लीवर वेट 1.6 kg एंड इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। Now pancreas, it is a gland located in the upper left part of the abdomen behind the stomach. It is light pink in color. Pancreatic juice is produced by pancreas and passes it to the small intestine. The pancreatic juice is used for digestion of carbohydrates and proteins present in the food. It breaks down complex carbohydrates and starch into simple sugar and complex protein into simple amino acid. पेनक्रियाज जो होती हैं ये स्टमक के बैक की साइड पे लोकेटेड होती हैं और ये भी क्या करती है, एक तरह का जूस सिक्रीट करती हैं जिससे कि कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में क्या करती है, हेल्प मिलती है। नाउ एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव फूड ऑल्सो अकर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज अ नंबर ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विली, सिंगुलर वाइलस. These villi increase the surface area for absorption of the digestive food. The villi have a network of very fine blood vessels called capillaries. The food substances are absorbed by the villi and then transported to the different organs of the body through blood vessels. अब small intestine में जो फूड है उसका एब्जॉर्प्शन कैसे किया जाता है, तो जो इनर वॉल होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में उसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे विलीज कहा जाता है। ये विलीज जो होती हैं ये खाने में से जूसेस को या न्यूट्रिशंस को क्या करती हैं, सक करती हैं। Assimilation, the production of energy by absorbed food is called assimilation. The nutrients absorbed in blood are transported into various organs of the body. In the cells, glucose is broken down into water and carbon dioxide in the presence of oxygen to release energy. The energy is released in the presence of oxygen which we breathe. The equation of release of energy is as under. Glucose from digested food plus oxygen from air we breathe is equal to carbon dioxide plus water plus energy. अब एसिमिलेशन जो है लास्ट प्रोसेस माना जाता है। ये जो प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी होता है एब्जॉर्ब फूड के द्वारा, उसे हम क्या करते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। जो न्यूट्रिशंस होते हैं उनको एब्जॉर्ब किया जाता है ब्लड्स में और उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है अदर बॉडी पार्ट्स और ऑर्गन्स में। सेल्स में ग्लूकोज जो है ये ब्रेक डाउन किया जाता है वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ताकि एनर्जी को रिलीज किया जा सके। लार्ज इंटेस्टाइन, the large intestine is a thick tube. The average length of a large intestine of an adult human being is around 1.5 meter. The large intestine is much shorter in length but wider than the small intestine. Its main function is to absorb water and some salts from the undigested food materials. No digestion takes place here. तो लार्ज इंटेस्टाइन में हालांकि कोई डाइजेशन टेक प्लेस नहीं करता, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो आपके अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं उससे पानी और सॉल्ट को एब्जॉर्ब किया जाता है। नाउ रेक्टम एंड एनस, द अनडाइजेस्टेड वेस्ट फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन पासिस इनटू द रेक्टम एंड इज स्टोर्ड हियर एज सेमी सॉलिड फीसेस. The waste removed from the body is called feces and the process of removal of waste in the form of feces is called defecation. The deficial matter is passed out through an opening called the anus. This process is called egestion. तो आपका जो रेक्टम एंड एनस है, यहाँ पे आपका जो खाना है इसके थ्रू ये क्या होता है, बाहर निकाला जाता है। जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड होता है या वेस्ट फूड होता है जिसमें से पूरे न्यूट्रिशन निकाल लिए जाते हैं, अब उसको बाहर निकालने की तैयारी होती है, तो बाहर वो फीसिस के रूप में निकलता है। Nutrition in grass-eating animals. Herbivores mainly eat grass. It is rich in a specific carbohydrate called cellulose. Human beings and many other animals cannot digest the cellulose. The grass-eating animals like cow and horse have a unique method of digesting cellulose.
In cows, the stomach has 4 distinct compartments: rumen, reticulum, omasum, and abomasum, each having different functions. They quickly swallow their food after chewing once and store it in a first chamber of the stomach called rumen. The food is partially digested in the rumen, it is called cud. तो जितने भी हर्बीवोर्स हैं, जैसे कि आपने काऊ देखी होगी, गोट वगैरह देखे होंगे, तो ये क्या करते हैं, पहले अपने खाने को च्यू करते हैं, फिर उसको अपने फर्स्ट चैम्बर ऑफ द स्टमक में स्टोर करते हैं थोड़े टाइम के लिए, फिर इसको क्या करते हैं, इसको ये दोबारा से बाहर निकालते हैं, दोबारा से इसको च्यू करते हैं, जैसे आपने काउज वगैरह या गोट्स वगैरह को जुगाली करते हुए देखा होगा. Later they bring the swallowed food called cud from the rumen back to the mouth and chew it leisurely. Because of this, they are also called cud chewing animals or ruminants. The process of chewing food is called rumination. तो ऐसा ये इसलिए करते हैं क्योंकि जो भी इनको खाना मिलता है ये पहले उसको जल्दी जल्दी चबा करके मोटे मोटे पीसेस में उसको अंदर स्टमक में डाल देते हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं डालते, फिर उसको दोबारा से अपने मुंह में लेकर के आते हैं कि आराम से बैठकर इसको हम एंजॉय करेंगे. Their food is rich in cellulose, a type of carbohydrate. The food is next goes to the second chamber. The cellulose of the food is digested here by the action of cellulose digesting bacteria. In the next 2 chambers, the proteins are digested the way they are digested in our stomach. इसके बाद ये दोबारा से कहाँ जाता है, सेकेंड चैम्बर्स में जाता है. यहाँ पे जो सेलुलोस ऑफ फूड होता है उसको डाइजेस्ट किया जाता है बाय द एक्शन ऑफ सेलुलोस डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया. फिर इसमें नेक्स्ट 2 चैम्बर जो होते हैं उसमें प्रोटीन को डाइजेस्ट किया जाता है, जैसे कि हमारे स्टमक में किया जाता है. Read at a glance, the human digestive system consists of the mouth or buccal cavity, food pipe or esophagus, stomach, small intestine, large intestine, etc. Amoeba ingest its food with the help of its false feet or pseudopodia. Nutrition in animals involves 5 steps or processes: ingestion, digestion, absorption, assimilation, and egestion. The digestion of food begins in the mouth where saliva is mixed with food. The mouth contains teeth, tongue, and salivary glands. The stomach and small intestine walls secrete gastric and intestinal juices. There are 3 types of glands: salivary glands, liver, and pancreas, which are associated with the alimentary canal. This causes secretes of digestive juice. The inner lining of the stomach secretes mucus, hydrochloric acid, and digestive juices. They digest the food partially, forming chymes that moves into the small intestine. Digestion of carbohydrates begin in the buccal cavity. Digestion of food is completed in the small intestine. Bile juice secreted by the liver, pancreatic juice is secreted by the pancreas, and the digestive juices secreted by the small intestine to complete the process of digestion. Water and some salts from the undigested food are absorbed in the large intestine. Blood transports the absorbs substances to different parts of the body. Water and some vitamins are absorbed in the colon of the large intestine. Grass-eating animals like cows quickly swallowed their food after chewing it once and store it in the rumens. Later, they bring back the partially chewed food is called cud into the mouth and chew it properly. The process of chewing food in ruminants is called rumination. Now, key terms to know. Holozoic nutrition, taking food in complex form and breaking it into simple form to release energy. Ingestion, the process by which food is taken inside the body of an organism. Digestion, the process of breakdown of complex food into a simple and soluble form. Absorption, process of passing in digested food to various parts of the body. Assimilation, process of releasing energy from food by cells of body parts. Egestion, process of removal of undigested food from the body. Digestive system, the organ system that carries out digestion. Villi, finger-like projections found on the inner lining of the small intestine. Alimentary canal, long tube of human digestive system from buccal cavity to anus. Mastication, process of biting and chewing food and mixing it with saliva. Defecation, process of removal of waste in the form of feces. Rumination, the process of chewing the cud. Cud, food from which cellulose has been digested. Scavengers, animals that eat dead animals. Parasites,
and organisms that live on और इनसाइड अदर ऑर्गेनिजम्स. सो चिल्ड्रन, इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि ह्यूमन जो होते हैं वो कैसे उनका डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क करता है, कैसे हमारा खाना मुंह से जा करके विंड पाइप से, फूड पाइप से जा करके कैसे हमारे स्टमक में पहुंचता है, और फिर उसके बाद जो प्रोसेस है डाइजेशन का वो शुरू होता है, और जो भी न्यूट्रिशंस हमें चाहिए होते हैं वो हम उस फूड से लेते हैं और फिर उसे बाहर रिमूव कर देते हैं. अनडाइजेस्टेड जो भी खाना होता है, जो वेस्ट होता है, उसको हम बाहर रिमूव कर देते हैं. इसी तरीके से कुछ एनिमल्स जैसे कि काव होती है, वो खाने को क्या करती है, पहले मोटे अमाउंट में उसको खा लेती है, उसको अच्छे से चू नहीं करती प्रॉपर्ली, फिर दोबारा से कहीं बैठ के उसको अच्छे से क्या करती है, अपने मुंह में दोबारा से ला करके उसको अच्छे से प्रॉपर्ली चू करती है, जिसे हम रूमिनेशन कहते हैं. So children, I hope you understood the chapter very well. Now you will revise the chapter and practice the given exercise to understand the chapter thoroughly.